In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, educarians. I hope all of you are fine and taking good care of yourself. Welcome in computer class, lesson number 3. The topic is editing in MS Word. Editing a document in MS Word. Dear students, before going to start lesson number 3, let's take a quick review of lesson number 2. Editing a document. Dear students, making changes in a document without deleting it is called editing. To edit a text, it has to be first selected. Editing text includes moving the text and arranging it as per requirement. Let's come to know the steps to move the text. First of all, select the block of text. After selecting, on the Home tab, choose the Cut tool. The selected text will disappear. Now take the pointer on the spot where text has to be pasted and click. After clicking, choose the Paste tool from the clipboard. The text will be pasted on the new place. Inserting text. Dear students, we can add new text to an already existing document. It is done by placing the cursor at the place where text is to be added. Then type the text. After typing, the existing text to the right of the cursor will move forward. Let's start lesson number 3. Dear students, the material required for today's lesson is lead pencil, eraser, sharpener, highlighter, ruler, computer textbook, computer notebook, and winter bag. Dear students, I hope all of you are having this material and get ready for today's lesson. Let's start unit number 6, editing a document in MS Word. The contents included in this lesson are deleting block of text, find and replace text, undo and redo changes, checking spelling and grammar. Dear students, I hope by the end of this lesson you will be able to learn about how to delete block of text. You will be able to know the steps to find a particular word. Undo and redo changes. You will be able to know how to check spelling and grammar mistakes. So, let's begin. Please open your computer textbook and come to page number 50. Write today's task, day and date on your textbook. Let's start our next topic, deleting blocks of text. Dear students, previous lessons में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम MS Word में टेक्स्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं. आफ्टर इंसर्टिंग हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं और उसको एडिट कैसे करते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो टेक्स्ट हम इंसर्ट कर चुके हैं उसको अब हम डिलीट कैसे कर सकते हैं. वेरी सिंपल. Dear students, we can use the backspace and delete keys on the keyboard to delete the text. आपने सिंपली कीबोर्ड की मदद से बैकस्पेस या फिर डिलीट की को प्रेस करके टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं. आपके लिए कीबोर्ड पे बैकस्पेस और डिलीट की को फाइंड करना भी डिफिकल्ट नहीं होता बिकॉज हर की के ऊपर उसका नेम मेंशन होता है. Dear students, backspace key will delete text to the left of the cursor. बैकस्पेस की मदद से हम कर्सर के लेफ्ट साइड वाला टेक्स्ट डिलीट कर सकते हैं. एंड डिलीट की विल इरेज टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर. इसी तरह हम कर्सर के राइट साइड वाला टेक्स्ट सिंपली डिलीट की को प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं. टू डिलीट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट वी शुड फर्स्ट हाईलाइट और सेलेक्ट इट एंड देन प्रेस द डिलीट की. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट एक साथ डिलीट करना है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करना है ये हम प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर चुके हैं.
आपने माउस की मदद से उसका लेफ्ट बटन प्रेस करके माउस को ड्रैग करते जाना है और वहां तक ड्रैग करना है जहां तक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जब आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, आपने सिंपली कीबोर्ड की मदद से डिलीट की को 1 टाइम प्रेस करना है, तो आपका वो सारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लेट्स कम टू नो व्हाट इज फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को फाइंड करके उसको न्यू वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमारे पास ये मेथड भी MS वर्ड पे अवेलेबल है। लेट्स कम टू नो द स्टेप्स टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिक ऑन फाइंड ऑन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द रिबन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने रिबन में से फाइंड पे क्लिक करना है। After clicking, a find and replace box appears. आपके पास एक find and replace box appear हो जाएगा as you can see in the figure. Now, dear students, to find and replace a word. किसी word को find और replace करने के लिए सबसे पहले आपने click करना है replace on the find and replace box. आपने replace बटन पे click करना है as you can see in the figure. बिकॉज आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमने रिप्लेस बटन पे क्लिक करना है। नाउ राइट द वर्ड दैट हैज़ टू बी फाउंड। अब आपने फाइंड वर्ड पे वो वर्ड राइट करना है जो आप अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड करना चाह रहे हैं। आफ्टर राइटिंग, राइट द वर्ड दैट इज हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद। अब आपने रिप्लेस विद में वो वर्ड राइट करना है जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं। After writing, click on the replace button as you can see in the figure. After clicking, dear students, आपका new word previous word से replace हो जाएगा। Highlight the main points on your textbook. Undo and redo changes. Dear students, undo and redo की option हमारे पास MS Word पे available होती है। The word undo means किसी काम को खत्म कर देना। एंड द वर्ड रीडू मीन्स उसी काम को जो हम खत्म कर चुके हैं दोबारा MS वर्ड पे इंसर्ट कर देना। वर्ड कीप्स ट्रैक ऑफ चेंजेस दैट वी मेक सो दैट वी कैन इजीली रिमूव अ चेंज एंड रीस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, हम इजीली किसी वर्ड को रिमूव कर सकते हैं और हम उसको दोबारा रीस्टोर यानी उसी वर्ड को दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स कम टू नो द स्टेप्स टू अंडू चेंजेस आर। Click on the undo button on the quick access toolbar. Dear students, first of all, look at the picture. It is a beautiful day. अगर हम undo बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा लास्ट वर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा as you can see in the figure. To reverse the action of the undo command, dear students, अगर हम undo command को रिवर्स करना चाह रहे हैं यानी हम उसी वर्ड को दोबारा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, then क्लिक रीडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आपने रीडू बटन पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग आपका वही वर्ड दोबारा डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा एज यू कैन सी इन द फिगर। हाईलाइट द मेन पॉइंट्स ऑन योर टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 51 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। लेट्स कम टू नो चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। In MS Word, there is a built-in dictionary and a set of grammatical rules to check that document. In a Word document, an incorrect spelling of a word can be seen with a single red wavy line. Dear students, अगर हम document में कोई word insert कर चुकी हैं but spelling wrong insert हो चुकी हैं तो हमारे पास वो word document में red line के साथ underline हो जाता है as you can see in the figure. The spelling of Sunday is SUNDAY. बट अगर हमें स्पेलिंग रॉन्ग करनी है तो हमारे पास वो वर्ड रेड लाइन से अंडरलाइन हो जाएगा एज यू कैन सी इन द फिगर। सिमिलरली अ लाइन विद ग्रामेटिकल मिस्टेक इज सीन विद द ग्रीन वेवी लाइन। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी कोई ग्रामर की मिस्टेक हो गई है तो वो मिस्टेक हमारे पास ग्रीन वेवी लाइन से हाईलाइट हो जाती है एज यू कैन सी इन द फिगर। आफ्टर फुल स्टॉप हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं बट लुक एट द पिक्चर। आफ्टर फुल स्टॉप हमने W स्मॉल राइट किया हुआ है, इसीलिए हमारे पास वो वर्ड ग्रीन बेबी लाइन से अंडरलाइन हो गया है।
Let's come to know the steps to start spelling and grammar checking. First of all, place the cursor on the word with the spelling mistake. Dear students, सबसे पहले आपने उस वर्ड पे कर्सर प्लेस करना है जिस वर्ड की हमने स्पेलिंग रॉन्ग इंसर्ट कर दी है. Now click on the review tab to select spelling and grammar mistake. Dear students, अब आपने spelling and grammar mistake बटन पे क्लिक करना है. स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स अपीयर. आपके पास एक स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा एज यू कैन सी इन द फिगर. द टेक्स्ट that word 2007 thinks is misspelled is highlighted and a list of words with the correct spelling is displayed in the suggestion panel at the bottom of the dialog box. Dear students, as you can see in the figure, हमारे पास जिस word की spelling wrong है वो highlight हुआ है रेड कलर के साथ. इसी तरह हमारे पास डायलॉग बॉक्स में सजेशंस में उसके करेक्ट स्पेलिंग्स भी राइट हुए हैं एज यू कैन सी इन द फिगर. डियर स्टूडेंट्स, वहाँ से हमने जो उसके करेक्ट स्पेलिंग है उसको सिलेक्ट करना है. आफ्टर सिलेक्टिंग हमारे पास उस वर्ड के स्पेलिंग डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी चेंज हो जाएंगे. लेट्स कम टू नो हाउ टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर फर्दर. डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक होती है वो वर्ड हर जगह रेड लाइन के साथ अंडरलाइन हो जाता है एज यू कैन सी इन द वर्ड संडे. इस वर्ड में स्पेलिंग रॉन्ग राइट है, इसलिए ये वर्ड डॉक्यूमेंट में हर जगह रेड लाइन के साथ अंडरलाइन हो जाएगा. बट अगर आप इस एरर को इग्नोर करना चाह रही हैं, यानी आप ये चाहती हैं कि आपकी स्पेलिंग भी चेंज ना हो और आपका एरर भी शो ना हो, रेड लाइन रिमूव हो जाए, then right click with the help of mouse. A drop down menu will appear as you can see in the figure. The first option is ignore once. Click this button to ignore the error shown. इस बटन पे क्लिक करने से आपका वो एरर इग्नोर हो जाएगा. Look at the word Sunday. इस बटन पे क्लिक करने से आपके उस वर्ड के स्पेलिंग तो चेंज नहीं हुए बट रेड लाइन रिमूव हो जाएगी, यानी डॉक्यूमेंट में एरर शो नहीं होगा. Ignore all. Click this button to ignore a particular error in the whole document. इस बटन पे क्लिक करने से आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ एरर शो हो रहा है वो एरर इग्नोर हो जाएगा. Add to dictionary. The highlighted word gets added to the MS Word dictionary. Dear students, इस बटन पे क्लिक करने से आपका वो वर्ड MS Word की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा. इट्स मीन आप जब कभी भी डॉक्यूमेंट में वो वर्ड राइट करेंगे तो कभी भी एरर शो नहीं होगा बिकॉज हम वो वर्ड डिक्शनरी में ऐड कर चुके हैं. चेंज. फर्स्ट चूज द वर्ड फ्रॉम द सजेशन पैनल. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने सजेशन पैनल में से उस वर्ड पे क्लिक करना है जिस वर्ड को आप चेंज करना चाह रहे हैं. देन क्लिक दिस बटन टू इंसर्ट द करेक्टेड वर्ड. फिर आप चेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका करेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा. चेंज ऑल. क्लिकिंग दिस बटन चेंज द वर्ड वेयर एवर इट अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट. इस बटन पे क्लिक करने से डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ वर्ड राइट है हर जगह चेंज हो जाएगा. ऑटो करेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, ऑटो करेक्टिंग ऑप्शन सबसे इजी ऑप्शन है हमारे पास MS वर्ड पे. It changes the word on its own when we are typing. इस बटन पे क्लिक करने से हमारे उस वर्ड के स्पेलिंग ऑटोमेटिकली हर जगह चेंज हो जाएंगे. Highlight the main points on your textbook. Come to the page number 52 of your textbook. Let's come to know how to check grammar mistakes. Dear students, we can check the grammar of a document by clicking on the check grammar option button. स्पेलिंग मिस्टेक को रिमूव करने के बाद अब आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर बॉक्स में जाके चेक ग्रामर बटन पे क्लिक करना है. आफ्टर क्लिकिंग आपके डॉक्यूमेंट में जहां ग्रामर की मिस्टेक होगी वो आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर बॉक्स में शो होगी एज यू कैन सी इन द फिगर. हमारे पास फिगर में देयर की मिस्टेक शो हो रही है और हमारे पास सजेशन पैनल में उसका ट्रू आंसर भी अवेलेबल है. नाउ क्लिक ऑन द चेंज बटन ऑप्शन. जब आप चेंज बटन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट में ग्रामर की मिस्टेक ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी.
Dear students, once the spelling and grammar check is complete, जब आपके पास डॉक्यूमेंट में हर जगह स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स रिमूव हो जाएंगी, a dialog box will appear. Click OK बटन to exit the dialog box. आपके पास डॉक्यूमेंट में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स पे शो होगा कि आपके पास स्पेलिंग और ग्रामर चेक कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्लिक ऑन द ओके बटन। आपने ओके बटन पे क्लिक करना है तो आपके पास वो बॉक्स डिसअपीयर हो जाएगा और आप अपना काम फर्दर जारी कर सकते हैं। हाईलाइट द मेन पॉइंट्स ऑन योर टेक्स्ट बुक। Dear students, it's time to start our winter pack work. Please open your winter pack and come to page number 17. Let's start the worksheet of unit number 6, editing a document in MS Word. Come to the question number 1. Encircle the correct option. Making changes in the text is called editing. MS Word is word processing software. To edit a document, it has been selected. We can save our document in the computer, which help us to use in future. The MCQs number 5 is, for select paragraph, we click triple times within the paragraph. In Word document, an incorrect spelling can be seen with red wavy line. We can open the word count tab by clicking Review tab. Thesaurus allows us to view synonyms of our word. Dear students, solve question number 1 on your winter pack with the help of this slide. Come to the question number 2. Match column A with column B and write answer in column C. The shortcut key for select all is Ctrl plus A. The shortcut key of save is Ctrl plus S. The shortcut key of new is Ctrl plus N. The shortcut key of paste command is Ctrl plus V. The shortcut key of cut command is Ctrl plus X. The shortcut key of undo command is Ctrl plus Z. The shortcut key of redo command is Ctrl plus Y. I hope today's topics are now clear and you got each and every point. Dear students, it's time to write task to do. The task to do for you is do practical and use undo and redo command to remove a change and restore the original text. Learn and solve worksheet on your winter pack and paste it on your notebook. Dear student, the task to do must be done in a very neat and presentable manner. I hope today's topic will be helpful for you. Best of luck for your home task. Allah Hafiz.